So, can the soul be killed? So then, why is the session's name, killer of the soul? Don't be the killer of the soul. Soul cannot be killed, right? But even then, why the session is the killer of the soul? Why? Because if we call it, right, killer of the talent. You're killing his talent. You're killing her talent, right? You're killing his skills. There's a very nice painter or very nice sports person, but उनके घर वाले बोलते हैं पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो, study 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 study. That guy is such a nice cricketer or a football player. Instead of fanning his or her skills and desires and their attachment to a particular thing or the quality which they have, what the parents do, they dishearten him or her. अरे ये ना, ये सबसे कुछ नहीं होने वाला है, पढ़ाई में ध्यान दो, राइट? होता है सबके साथ में, कितनों के साथ में होता है ऐसे घर पे कि you want to do something and the parents say, oh you better do this. 20 साल के हो गए, बस है ना, अभी सब छोड़ दो, पढ़ाई वढ़ाई जॉब वॉब सब बाद में, खाना बनाना सीखो. हाँ, जो आई वांट टू बी IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर, आई वांट टू डू समथिंग इन साइंस, आई वांट टू गो इनटू ज्वेलरी फील्ड, डिजाइन फील्ड, फैशन फील्ड. मदर फादर, बहुत हो गया, 20 साल की हो गई, लड़का नहीं मिलेगा कोई, राइट? चलो छोड़ो सब कुछ एंड मैरिड, राइट? सो व्हाट इज कॉल्ड दैट कॉल्ड killer of the desire or killer of the talent, right? Similarly, the soul का क्या है? desire है. What is the desire of the soul? What is the desire of the soul? What is the desire of the soul? Serve Krishna. जीवेर स्वरूप होए कृष्णर नित्यदास. Our original constitutional position, just like the original constitutional position of sugar is sweetness, of water is liquidity. Similarly, Jivera Sarup Krishna Nityadas. Our original original position, the constitutional position is we are Krishna's Nityadas. We are servant of Krishna. That is our desire. Original. But what happens? We have nothing to revive that. In the school we go, we are told that you are this body, work for this body. And then you are told, okay, you have to get married, so earn for this body. Then you get a nice wife. Then the wife comes, then work for her. Then the children. So the whole life you are told, you are programmed in a way that you have to work for the body. But are you the body? No, you're not the body. So what are you doing? You're killing the desire of the soul. The desire of the soul, inherent quality of the soul, is to be attached to Krishna. Just like fish cannot remain without water. A living entity, he cannot remain without Krishna. But the moment he comes out of the womb of mother, यहाँ का दुनिया का चकाचौंध देख के वो भूल जाता है. Killer, that is killed. That desire to serve Krishna is killed. What happens when you're packed inside the womb? It is described in Srimad Bhagavatam, very detailed, that when the child is packed inside the womb of a mother, imagine if someone packs you like that in a bori. How much month you can survive? Forget month. How many days you can survive? Forget days. How many hours you can survive in a bori packed, in a gunny bag you're packed? How many hours you'll survive? How many hours you'll survive? Like that. If I pack you 5-6 hours, maybe 1-2 days, बैग को खाते रहोगे तो कुछ हो सकता है. May survive a little longer, right? But eventually you're going to suffocate and die. Just the very fact that the fear will kill you more than the actual event. The fear will kill you. Imagine the child inside that bag is there for 9 months. How does the child survive?
how does that child survive? On what does that child survive? Have you ever thought कि वो child कैसे survive करता है अंदर? We can't survive 9 hours in such a situation. The child survives for 9 months like that. Fact. How? How he survives? How did you survive inside your mother's womb for 9 months, 8 months, 9 months, whatever? आज तो सीजन होता है, सब 9 महीने के पहले हो जाता है सबका. Yeah, Krishna's mercy is there. Krishna's darshan. The child gets Krishna's darshan. Paramatma is accompanying the child in the womb also. Is there, in the heart, the Paramatma is there. So that Paramatma keeps the heartbeat of the child moving. वो होता है ना वेंटिलेटर पे जब आदमी होता है तो वो आर्टिफिशियली उसका हार्ट बीट मूव किया जाता है ना, उसी प्रकार परमात्मा इज अ वेंटिलेटर, इज ऑक्सीजन इनसाइड द वूम. So he keeps us moving. He doesn't let us, die. Obviously, if you're bad karmas, then the Paramatma also has to give you, punish you as per the karmas. So, you can die in the womb also, or you're killed in the womb, abortion and all. But natural when you take the natural process, that time the Paramatma is there in the heart, and the Paramatma is not letting the child die. So the child sees the care of the Paramatma. Narayan promises Narayan, oh, I am your part and parcel. I promise you, oh my Lord, the day I am out of this womb, I will serve you. I'll become a devotee of yours. I'll become a great devotee of yours. और सबसे पहले आके हम क्या करते हैं? वही वचन तोड़ देते हैं. क्यों? हमारे सामने आती मम्मी पापा, ओ मेरे चुन्नू मुन्नू गुन्नू पुन्नू चुन्नू, ओ आगे तुम ऐसे करते रहते हैं बच्चे के सामने ना. मम्मी बाहर ये बोलो बच्चा, अरे वाह यार, ये तो बहुत ही अच्छी जगह है. भगवान को वादा किया उसका, क्या कौन से भगवान, कहाँ है भगवान? हेलुसिनेशन होगा मदर्स के वूम में, मेरा हेलुसिनेशन होगा. कौन से भगवान, क्या छोड़ो, मन मिल गए हमारे, है ना. तो डिजायर होता है जीव आत्मा का टू सर्व परमात्मा, दैट इज किल्ड एट दैट मोमेंट, बिकॉज यू बिकम एन्चेंटेड बाय द चकाचौंध, the glitter of this material world, and then you become captivated, and then you become lost in this. So you're killing your soul every moment. You're killing your soul every moment. You're killing the desire to serve the Lord every moment. तो क्या punishment होगा उसका? इसको बोलते हैं रियल आत्महत्या. नॉर्मली जो करते हैं वो देह हत्या होती है. People commit suicide, that is देह हत्या. You're just killing your body. But the real आत्महत्या is when you give up the desire to serve the Lord. That is a real Atmahatya. Because constitutionally you are part and parcel of Krishna. That is your goal of human life, to serve Krishna. Otherwise you are no different from animal. Animal cannot have this consciousness. Animal के पेट में होते हैं, जो भगवान आए नहीं, फर्क नहीं पड़ता है उसको. Very low consciousness. But the child can understand, oh, he's Paramatma. He smiles. Sometimes you might have seen the child smiles for no reason. How many of you have seen that? The child smile for no reason. देखा है? कितने लोग ने देखा है? हाँ, जो छोटा बच्चा होता है ना, नींद में स्माइल करता है. कोई रीजन नहीं है, कोई नहीं है वहां पे, बस वो नींद में स्माइल करते रहेगा. देखा है? किसको देख के स्माइल करता है? भगवान. उसको क्या दिखता है पता है? What does he see? His eyes are closed. Her eyes are closed. What do they see? What do they see there? वो कोई हंसी नहीं, परिया वरिया नहीं देखते ना. बच्चा है वो, क्या परिया दिखेगा वो पता नहीं परिया क्या होती है. तो ना कोई, है ना, आप लोग सो तो समझ भी आ सकते, स्माइल करो तो आप लोग अपना कोई बॉयफ्रेंड या कोई हस्बैंड या कोई वाइफ दिख जाए सपने में, ना गर्लफ्रेंड दिख जाए, आप स्माइल कर लोगे. वो बच्चा को क्या दिखने वाला है? कौन सा, अभी तो पैदा हुआ है वो, तो ना उसके लाइफ में कोई लड़की है, ना कोई लड़का है, ना पति है, ना कोई पत्नी है. किस लिए? वो कृष्णा को, हाँ, जो परमात्मा आते थे ना, जिसको बचाया, वो बार बार आते हैं याद दिलाने, बेटा तू बाहर आ गया, बेटा तू बाहर आ गया, अब लग जाना मेरी भक्ति में, लग जाना, रिमाइंड करने. तो वो स्माइल भी करता है, यस यस. और फिर जैसी आंख खोलता है, मम्मी ओ मेरे चुन्नू मुन्नू पुन्नू गुन्नू, दूधू पीना, दूधू लो, दूधू पियो लो, चालू हो जाता है उनका.
तो बेचारा बच्चा जो भगवान को स्माइल करके देखता है, वो बेचारा फिर माँ 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 माँ, कहाँ अच्छी छवि से कहाँ राक्षस दिख गए सामने। अब इन राक्षसों के सामने रहना पड़ेगा क्योंकि डिजायर उसका वैसे ही कर रहे हैं वो, वो इतनी अच्छी छवि भगवान की देखते हैं और आंख खोल के क्यों करता है बच्चा, है ना। बच्चे की नींद टूट जाती है, रोता क्यों बच्चा, द साइकोलॉजी, वो डरता है, वो दैट ओके डर रहा है बच्चा, बट द रियल रीजन इज द विजन ऑफ द लॉर्ड इज लॉस्ट। जो ब्यूटीफुल छवि है भगवान की वो खत्म हो जाती है। तो फिर देखता रहे मैं कहा, मैं अभी तो मैं गोलोक में था भगवान के साथ में, और यहाँ खोला तो पता नहीं कहाँ आ गया मैं, ये वेयर एम आई राइट नाउ। तो ही क्राइज एंड द मदर थिंग्स, वो बच्चे को ऑब्वियसली ही फील्स हंग्री, because he lost the Lord. So when you lose someone, your body, everything wants the Lord to be seen, but then it reacts in a negative way. Hunger and all those things, it reacts that way. So you drink some milk and the child is pacified, he forgets what he saw. So this chakachaund of the world is killing the child from his very birth. And as we grow older, we get friends, we forget the Lord. Then we grow more older, school become, we get more friends. Sometime, in the Kuwait school, we get, our girlfriend or boyfriend. Then we become more bigger. We go to college there also. Then we get married there. Then money is the real honey. Then, you run after money. Then like that you go on. Then हो गया तो end में फिर अब 40-50 साल के हो गए तो फिर कौन, अब नेक्स्ट डिजायर है उनका, अब मेरे पोते वो डाल देते ना, अरे मेरे बेटे के साथ मेरे बेटे हो गए, उनकी भी शादी करनी है, फिर उनके पोते पोती, फिर एंड ऑफ अपने डेड बेड तक is only mesmerized by the glitter of this material world, and he loses his main purpose, why he was sent in the material world. We are not here sent in the human body. There are 84 lakh species of body, but we get the human body. It's very rare. And why do we get the human body? Because we transmigrate in consciousness to a level where we understand now we can understand God here. Ato Brahma Jigyasa. But we fail to do that. Life after life after life after life, we fail to do that. And that is the reason why the third shloka of Ishopanishad says, the killer of the soul, जो भगवान से मुंह मोड़ लेते हैं वो लोग के बारे में बात हो रही है. The killer of the soul, whoever he may be, must enter into the planets known as the worlds of the faithless, full of darkness and ignorance. So what is a Brahmand? A Brahmand is a place of darkness. It is illuminated by artificial sun, moon, like that. They have to be kept here to illuminate it, or light, electricity. We are entered here, and where among the atheists, and then we are born among the atheists. We become an atheist. We lose because we are killing our soul. So Krishna, we have whatever promise we made, we are not fulfilling that. That means we lose our bhakti, the spiritual connect forever. Or we are sent into the darkest regions. What are the darkest regions? What are the darkest regions? The hellish planets are the darkest regions. They're full of darkness and ignorance, where you're fully intoxicated, ignorant. वहां पे पड़े रहते हो आप, पता भी नहीं होता क्या कर रहे हो. आपको वहां पे गर्मा गर्म तेल में बॉईल किया जाता है आपके सटल बॉडी के साथ में. In the hell, different types of hellish planets है. If you eat too much of non-veg, then जैसे आपने देखा है ना, आप गए होंगे, जाते हो तो आपके फुटपाथ पे देखते हो वो मुर्गियां लटकाते हैं, और वो क्या रॉड क्या बोलते हैं उसको पता नहीं, आयरन का जो भी होता है, स्टील का रॉड, उसके ऊपर लटके हुए होते हैं और नीचे से आग जल रही होती है. राइट? देखा है कितनों ने देखा है? How many of you seen that? How many of you seen that? Yeah, so वैसे होता है. To eat too much non-veg, then you will be put like that in the steel or the iron or whatever rod. आपके अंदर से घुसा के और नीचे आग जलते रहेगी और आप उसके ऊपर लटके रहोगे बस, और जल रहे हो ना, तब फायर का हीट से. जिस प्रकार आपने एंजॉय किया है ना,
चिकन को, मटन को, वॉटेवर को, उसी प्रकार से आप जो आग जलती है और जो वहां पे जो जल्लाद होते हैं ना, वो आपको एंजॉय करते हैं आपको तड़प देख के। ओ वाह देख, और आपको याद दिलाते हैं, देख तूने वहां पे वो रेस्टोरेंट में, हाँ, ग्रेटर पंजाब में इस प्रकार खाया था, ले तेरा भी ऐसे। ओ वहां पे ये पंजाब में तूने ऐसे खाया था, ले तेरा ऐसे। ओ याद कराते हैं वहां पे, रील, वाह ये। और कितने बार, कब तक जलते हो, कब तक, जितने आपने खाए हैं ना, जितने उस प्राणी में बाल है उसके शरीर पे, उतने बार आपको ऐसे बॉईल किया जाता है, और बॉईल हो ऐसे जलाया जाता है। उसके बाद में आपको गर्मा गर्म उसमें फेंकते हैं, कढ़ाई के अंदर, हेल में कढ़ाई, और आपको बॉईल, आपकी बॉडी, आपको देख रहे हो बॉईल हो रहे हो, बिकॉज योर सटल बॉडी, यू कैन फील द पेन, द माइंड फील्स द पेन, माइंड कैन फील द पेन, डिस्ट्रेस माइंड को होता है, सो यू आर इन डिस्ट्रेस। ग्रॉस बॉडी नहीं है तो फिजिकल पेन नहीं होता है, लेकिन मेंटल पेन होता है बहुत, और मेंटल पेन तो बहुत खतरनाक होता है। यू कैन फील द एंग्विश, यू कांट डू एनीथिंग, बॉडी, ग्रॉस बॉडी तो है नहीं, बस माइंड को पेन हो जा रहा है, एंड यू आर like crying, shouting, no one can hear you because you don't have a gross body. Gross body तो आपकी वॉइस को एम्पलीफाई करती है, सटल बॉडी में क्या वॉइस निकली, कुछ निकलती नहीं है, तो यू अपने आप ही रो रहे हो, क्राई कर रहे हो, तड़प रहे हो, लेकिन वहां मस्त बॉईल हो रहे हो, और जो आपको जल्लाद बॉईल कर रहा है इज एंजॉइंग। हाँ, ऐसे तूने बॉईल करके घर पे खाया था ना खाना, याद है? हाँ, तुमने ऐसे पकाया था, लो तुम्हारा भी ऐसे होने वाला है। चलो, so like that, if you like too much opposite sex, हाँ बहुत है, ईटिंग मीटिंग करने का बहुत शौक है, कबूतरों के जैसे, हाँ, गधों के जैसे, घोड़ों के जैसे, तो वहां पे क्या होता है पता है? एक विमेन पुतला खड़ा किया जाता है फॉर द मेल, और फॉर द फीमेल मेल पुतला। कौन सा पुतला? मेल, जिसके ऊपर आयरन लगा हो, क्या ये क्या बोलते हैं ना, कांटे 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 लगे हो, बोलते यू वांटेड टू एंजॉय, नो एंजॉय विद दिस कांटे। नहीं बोलोगे ओ आई कांट, पुश किया जाता है आपको, जाओ एंजॉय, और आपको लगता है अरे पेन्स, दिस इज द काइंड ऑफ टॉर्चर यू आर गिवन इन द हेल, यू नो, डार्केस्ट रीजन वेयर यू आर पुट, फॉर व्हाट? जस्ट फॉर किलिंग योर सोल, नॉट पेइंग अटेंशन टू कृष्णा। 20, 30, 40 साल के एंजॉयमेंट के लिए वहां पे रगड़े जाते हो ऐसे। यू नो, इफ यू रीड द हेलिश प्लैनेट, माय आर्टिकल इज देयर, यू विल पागल हो जाओगे रीड करके। व्हाट काइंड ऑफ टॉर्चर। आंखों में से रॉड डाला जाता है, आपकी सडल आइस से रॉड डाला जाता है। कितने लोग की आइस बचपन से वीक होती है, पता है क्यों? बिकॉज वहां पे वो आइस ट्रीटमेंट मिला होता है उनको अच्छी तरह से हेलिश प्लैनेट में, इसके लिए ऑल दीज थिंग्स आर डन देयर। सो वी शुड बी वेरी केयरफुल दैट वंस वी हैव गॉट द ह्यूमन फॉर्म, देन डोंट लीव योर ड्यूटी टुवर्ड्स द लॉर्ड। एक्चुअली द पेरेंट्स से सबसे बड़े कल्प्रिट इसमें पेरेंट्स होते हैं। उनसे बड़ा कल्प्रिट ऑब्वियसली हमारा एजुकेशन सिस्टम है, उन्होंने हमको ज्ञान नहीं दिया, बट पेरेंट्स सेंटिमेंटली हमें दिमाग में डाल देते हैं, अरे भगवान भगवान की बात तो क्या करते हो ना, ये तो फालतू की बातें हैं। योर ड्यूटी इज टुवर्ड्स योर पेरेंट्स, उनको आप सेवा करो। कितने लोगों ने सुना है डायलॉग? हाँ, कितने लोग डायलॉग सुना है? Your duty is towards your parents. भगवान भगवान तो होते रहेंगे। We तो nowadays lose every day someone because of their parents. सबसे बड़ा झूठ बोलते हैं आपके घर वाले आप लोग को, सबसे बड़ा झूठ। You are obliged to your parents. No, every human is obliged to five personalities. ये नहीं बताएंगे आपको, खाली बस पेरेंट का करेंगे वो, पेरेंट पेरेंट पेरेंट। You're obliged to your parents, खाली वो ही सुन के वो। और हमारे जितने भी है ना, क्योंकि उनको पता है ना, बाकी लोग को चार को आप obliged करके भी क्या कुछ उनका कोई फायदा नहीं होता है। तो वो शास्त्र तो बोलते हैं कि हाँ, शास्त्र में लिखा है कि मात्र ऋण होता है, लेकिन मात्र ऋण के साथ चार और ऋण होते हैं, वो नहीं बताते आपको। बस पोपट की जैसे मात्र ऋण मात्र ऋण मात्र ऋण, वो क्या मातृ ऋण ये बोलते रहते हैं कि हमने तुमको पैदा किया है, पैदा करके बड़ा किया है,
हमारे खिलाफ तुम्हारे, हमारे प्रति तुम्हारा कोई कर्तव्य नहीं है, ऋण नहीं है। और बच्चे सेंटिमेंटल, अरे हाँ सही बात है यार, हमको पैदा किया मम्मी ने, पापा ने, हाँ हमको दिया। भैया उसके पहले ऑक्सीजन कौन सप्लाई कर रहा था आपको? उसके बाद में आप जब ये ऑक्सीजन ले रहे हो, वो कौन दे रहा है आपको? आप एक पॉपकॉर्न का भी पैकेट खरीदते हो ना, तो उस पर भी गवर्नमेंट टैक्स लेती है, जीएसटी टैक्स लेती है, नहीं लेती है? हाँ, गवर्नमेंट टैक्स लेती है, नहीं लेती है? पॉपकॉर्न लो, बिस्किट लो, कुछ भी लो, उसके ऊपर टैक्स लगता है कि नहीं लगता है? जीएसटी। खाना खाने जाओ टैक्स लगता है, पानी की बोतल पियो टैक्स लगता है। गवर्नमेंट को टैक्स पे टैक्स दे रहे हो आप। ये जो ऑक्सीजन यूज कर रहे हो आप, उसका टैक्स कौन देगा? किसका यूज कर रहे हो ऑक्सीजन? ये जो अन्न खा रहे हो, उसका टैक्स कौन देगा? ये जो बारिश आ रही है, जो अन्न पैदा कर रही है, उसका टैक्स कौन देगा? ये जो समर विंटर ये सब हो रहा है आपके एंजॉयमेंट के लिए, उसका टैक्स कौन देगा? ये जो मिनरल्स मिल रहे हैं अर्थ से, उसका टैक्स कौन देगा? वो कौन सप्लाई कर रहा है आपको? हाँ, कोई गवर्नमेंट ने बनाया अपने अपने लेबोरेटरी में? गोल्ड सिल्वर जो पहन रहे हो आप, पहनते हैं ना, कितने लोग पहनते हैं यहाँ पे? गोल्ड रिंग सिल्वर चेन, क्या गोल्ड चेन सिल्वर रिंग कितने लोग पहनते हैं? शादी में देते हो ना, 1 तोला सोना, 2 तोला सोना, 10 तोला सोना। सोना क्या आपके दद्दू छोड़ के गए हैं? दद्दू छोड़ के गए ऑब्वियसली, लेकिन उनको कौन छोड़ के गया? कहां से आया उनके पास में? किसने दिया ये सोना? गवर्नमेंट ने। कहां से लिया वो सोना? जो सोना यूज करते हो, पहनते हो, ओके ना, यू हैव द गोल्ड एटलीस्ट इन द हाउस। जो गोल्ड आपके तिजोरी में पड़ा है, वो गोल्ड कहां से आया? वहां पे आपने कहीं पे घर पे मैन्युफैक्चरिंग किया, आर्किमिडीज जैसे मर्क्यूरी को ट्रीट करके आपने गोल्ड बनाया था क्या? फ्रॉम वेयर डिड यू गेट दैट गोल्ड? वेयर डिड यू गेट दैट सिल्वर? द रिंग्स यू वेयर, you know, पुखराज, you know, all these gemstones, from where did you get? ये जो घर में रह रहे हो आप, ये घर में जो अर्थ वाटर फायर यूज हुआ था, वो कहां से आ रहा है? आपने घर में बनाया? तो ये ऋण कौन देगा? इसका कितना टैक्स दिया आपने? ऑक्सीजन के लिए कितना टैक्स दिया? एक पॉपकॉर्न खाने के लिए, एक ये करने के लिए आपका 50 रुपए टैक्स लगता है। आप स्विगी से बुक करो कोई भी चीज अभी, और स्विगी लेगा 50-100 रुपए टैक्स लेगा उसके ऊपर, राइट? 1%, 2% जो भी टैक्स लेगा ना, वो तो गवर्नमेंट ले रही है। भगवान जो दे रहा है, उसका टैक्स कौन देगा? वो भी ऋण होता है एक, दैट इज कॉल्ड देव ऋण। सो देयर आर 5 प्रकार के ऋण होते हैं हमारे ऊपर। जब हम पैदा होते हैं उस दिन से हमारे पे 5 प्रकार के ऋण चालू हो जाते हैं। तो यदि आप कर्म कांडा भी फॉलो कर रहे हो, भक्ति मत करो, चलो भक्ति 1 मिनट के लिए भूल जाओ। इवन इफ यू वांट टू लीड अ नॉर्मल ह्यूमन लाइफ, यू हैव टू फुलफिल, गिव दीज 5 ऋण्स बिफोर यू डाई, अदरवाइज यू विल एंटर द डार्केस्ट रीजन। इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं, यदि आप लाइफ में कुछ भी नहीं करोगे ना, तो भी आप हेल में जाओगे, क्योंकि ये 5 ऋण आपके ऊपर लगे रहेंगे। क्योंकि आप ऑक्सीजन ले रहे हो, है ना, आप अन्न खा रहे हो, उसका ऋण नहीं, कुछ नहीं करोगे आप तो। लोग बोलते हैं अरे हम तो कोई कर्म नहीं करेंगे, जैसे बुद्धिस्ट लोग हैं, राइट? बुद्धिस्ट लोग क्या बोलते हैं कि वी विल नॉट एक्ट। तो हम एक्शन नहीं करेंगे तो रिएक्शन नहीं होगा, यही बोलते हैं। उनकी फिलॉसफी यही है बुद्धिज्म की, और समटाइम जैनिज्म की फिलॉसफी यही है कि अगर हम एक्शन नहीं करेंगे तो उसका रिएक्शन नहीं होगा, सो वी विल नॉट एक्ट ओनली। मायावादी भी अपने सब एक्शन बंद कर देते हैं। अरे बाबा, ऑक्सीजन तो ले रहे हो, हाँ, सनलाइट तो यूज कर रहे हो, आपके बॉडी में जो पाचन शक्ति है वो तो यूज हो रही है, वो कहां से आ रही है? आप कुछ भी ना करो तो भी आपके ऊपर देव ऋण है। ये देव डेमी गॉड्स हेल्प कर रहे हैं आपको। डेमी गॉड सूर्य देव सन सप्लाई कर, लाइट सप्लाई कर रहे हैं, हीट सप्लाई कर रहे हैं। चंद्रदेव आपको शीतलता सप्लाई कर रहे हैं। रेन गॉड आपको पानी सप्लाई कर रहे हैं, रेन के। वायु आपको अच्छे दे रहा है, ऑक्सीजन दे रहे हैं। तो ये सब ऋण कौन चुकाएगा? कहां से लाओगे चुकाने के लिए ऋण? खाली मत ऋण बोला कभी नेक्स्ट महीने को, भैया हमारा ऑक्सीजन का ऋण है वो भी चुकाना है हमको।
कहां चुकाएंगे हम? तो कर्म कांडा फॉलो करने वालों को भी ये 5 ऋण तो चुकाने पड़ते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट ऋण पितृ ऋण, पितरों का ऋण। अब ये ऋण बहुत खतरनाक है। क्यों खतरनाक है? क्योंकि जो पितृ होते हैं हमारे पूर्वज, व्हाट इज पितृ? पता है? यू नो हाउ वन बिकम पितृ? पितृ कैसे बनते? कौन होते हैं पितृ? पितृ कहां होते हैं? पितृ लोक है हेवनली प्लैनेट्स के नीचे एक पितृ लोक है, वहां पितृज होते हैं। पितृज कौन होते हैं? जिन्होंने अच्छे काम किए हैं लेकिन इतने भी अच्छे काम नहीं किए कि वो स्वर्ग में जा सके, न्यूट्रल अच्छे काम किए, ठीक है, वो जाते हैं और उनको अपने घर वालों से बहुत अटैचमेंट है। तो यदि उनका कोई पितृ वहां पे है पितृलोक में, तो वही वहां जाएंगे पितृलोक में। लेकिन पितृलोक का एक प्रॉब्लम है, अब वहां पहुंच तो गए, हाँ, लेकिन वहां रह नहीं सकते आप हमेशा, और वहां एंजॉयमेंट बहुत होता है। तो क्या करना? क्यों नहीं रह सकते? वहां पे आप खाली 1 साल तक रह सकते हो, साल में, और वहां पे रहने के लिए हर साल आपके जो यहाँ पुत्र हैं उनको ऋण देना पड़ता है, टैक्स, आपको वहां रखने के लिए। अगर ये यहाँ टैक्स नहीं देंगे, जो श्राद्ध बोलते हैं हम जिसको, है ना, जिसको टैक्स देंगे, तो वहां से उनको नीचे फेंक देंगे वापस, और उनको यहाँ पे आना नहीं है मटेरियल वर्ल्ड में। तो यदि आपने श्राद्ध नहीं दिया और वहां पे उनका टाइम खत्म हो गया और वो यहाँ पे आ गए, तो वो आपको श्राप दे देंगे। पितृदोष, वो होता है पितृदोष, वो होता है पितृदोष। जैसे होता है ना कि आपके माँ बाप ने सब कुछ किया आपके लिए, अब वो ओल्ड हो गए, तो माँ बोलते हैं अच्छा बेटा तू सब कुछ ले ले हमारा, बस हमारा घर का खर्चा चला दे, हाँ, हमको और कुछ नहीं चाहिए। बोला हाँ बेटा ठीक है मम्मा मैं चलो नो घर में यूज करता मेरा, मैं घर का खर्चा चला दूंगा। 1 महीने 2 महीने खर्चा चला दिया, तीसरे महीने ग्रीडी हो गया थोड़ा, बीबी ने बोला है कितना दोगे, है ना, माँ बाप को सब छोड़ो। तो तीसरे महीने नहीं दिया उसने रेंट, जहाँ रहते हैं पिता, क्योंकि बीबी को साथ में रहना नहीं है माता पिता के साथ में, तो बाजू के घर में रहते हैं। अब बेटे ने रेंट देना बंद कर दिया, तो क्या होगा? जो मकान मालिक होगा उनको बोलेगा निकलो यहाँ से। वैसे पितृ लोग से बोलते हैं निकलो यहाँ से, आपका रेंट नहीं आया महीने का। अब वहां से बुढ़े माँ बाप को निकलेंगे तो बुढ़े माँ क्या बोलेंगे? अरे मेरे बेटे, क्या जिंदगी भर तेरे को हमने संभाला और तू एक रेंट नहीं दे पाया। उसी प्रकार पितृ लोग बोलते हैं पितृ हमारे, कि हमने तुमको अपना खानदान दिया, अपना वंश दिया, अपने वंश में जायदाद दिया, ये दिया वो, और तू हमको एक पितृ क्या श्राद्ध नहीं कर पाए हमारे लिए, पितृदान नहीं कर पाए, तो अब पितृ दोष लगा तुमको। लो, इसे सबको पितृ दोष होता है, क्योंकि किसी को पता ही नहीं उनके पितृ है कि भी है, जानते नहीं, हमको बता, स्कूल में बोलते तो सेंटिमेंटल चीजें हैं, ये सब होता तोड़ना है। We are never taught in the school and colleges, so the youth has no faith in these things. तो आज के यूथ तो करते नहीं है, अब नहीं करते तो फिर उनकी प्रॉब्लम्स इतनी सारी घर में हो जाती है। वो बोलते रहे इतनी प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है? भैया इसलिए आ रही है क्योंकि आपके पितृ थे ना, उनको वहां से देश निकाला कर दिया और वो यहाँ पे भटक रहे हैं अब, और भटक रहे हैं, आपको कर्ज कर रहे हैं। आप यहाँ एंजॉय कर रहे हो, वो उनको जलन हो रही है पितरों को, और आपकी एंजॉयमेंट दिख नहीं आ रही है, इसलिए आपको हर अच्छी चीज के पीछे आपका रोड़ा लगा रहे हैं। आपकी शादी लेट हो रही है क्योंकि पितृ लोग आपको होने नहीं दे रहे, क्योंकि आपकी खुशी की चीजें है ना, तो आपने उनको दुख दिया, अब वो थोड़ा चुप बैठने वाले, वो भी आपको दुख देंगे। तो शादी लेट ठीक है, बच्चा लेट, कभी बच्चा लेट ठीक है, इनकम लेट, इनकम बराबर नहीं, कभी ये प्रॉब्लम, कभी वो प्रॉब्लम, कभी हेल्थ की प्रॉब्लम, कभी इसकी प्रॉब्लम, पितृ दोष। तो ये है पितृ करना पड़ेगा, पितृ ऋण। सेकंड आता है मातृ ऋण, जो पेरेंट्स का ऋण होता है, क्योंकि पेरेंट्स ने बर्थ दिया है तो हमको चुकाना है, ठीक है। उनको बेस्ट कैसे चुका सकते हैं पेरेंट्स? कि हम डिवोटी बन जाए तो हमारे सब पितृ और मातृ सब अपने आप ही गोलोक चले जाएंगे, तो वो सबसे बेस्ट वे होता है। लेकिन वो अगर हम भक्ति नहीं कर रहे हैं, कर्म कांडा नहीं कर रहे हैं, सॉरी भक्ति नहीं कर रहे, खाली कर्म कांडा कर रहे हैं, तो उसमें हमको ये ऋण भी चुकाना पड़ेगा। थर्ड ऋण है देव ऋण, जो मैंने बता दिया, ऑक्सीजन ये वो सब कुछ देवी देवता दे रहे हैं हमको, उनका ऋण कहां से चुकाओगे आप? आप मातृ ऋण तो चुका देते हो अपने मम्मी पापा के सेंटिमेंट्स में आके, ठीक है, आज से हमने स्कॉनिंग छोड़ दिया, मम्मी पापा छोड़ दिया स्कॉनिंग, आज से हम आपके अच्छे बेटे बन के रहेंगे, बेटी बन के रहेंगे, ना मोबाइल यूज करेंगे, ना टेलीग्राम यूज करेंगे, ना कुछ यूज करेंगे, बस हम आपका नाम जपेंगे आज से। ओम मम्माय नमः, ओम मम्माय नमः, ओम मम्माय नमः, ओम मम्माय नमः, ओम पापाय नमः, ओम पापाय नमः, ओम पापाय नमः, ओम पापाय नमः, ओम मम्माय नमः, ओम मम्माय नमः, ओम मम्माय नमः, ओम पापाय नमः, पापाय नमः, पापाय नमः। बस आज दिन रात आपका नाम जपेंगे मम्मी पापा, ठीक है, वेरी गुड। हाँ बच्चे हमारा नाम जपो,
हमारा नाम किसी ने जपा नहीं, तुम जपो, जप रहे नाम। ये करते हैं हम। हरे कृष्णा मंत्र बोलो, छोड़ो, मोबाइल ले लेंगे, मोबाइल दो। तो मोबाइल कैसे यूज कर सकते हो? भगवान का नाम जप कर रहे हो, मोबाइल दे दो, ठीक है। मोबाइल बंद, सब कुछ बंद, अब हमारा नाम जप करो। You know, when I was not into Krishna consciousness, and actually I came to Krishna consciousness, just and I used to started going to the temples, ISKCON temple and everywhere. So one day I came home. It was like 2-3 months in Krishna consciousness. My father called me. गौरव, आजकल तू डिस्को विस्को नहीं जा रहा है, क्या बात है? आजकल तू तो पहले तो तू शायद स्मोकिंग ड्रिंकिंग करता था ना, आजकल वो करना बंद क्यों कर दिया तूने? तेरा फ्रेंड जो जॉनी है वो, उसको बुला ना, तुम लोग घूमने जाओ ना। ये क्या इसमें ये लगे हुआ है, ये क्या है ये? थोड़ा स्मोकिंग कर, ड्रिंकिंग कर, डिस्को जा, गर्लफ्रेंड बना, ये सब क्या इसमें? एक तेरी उम्र है क्या? अगर मैं जब वो कर रहा था ना, तो एक दिन मैंने कृष्णा कॉन्सर्ट के पहले मैं स्मोकिंग करके आया था एक बार। तो मेरे पापा ने मेरे हाथ बोला, इधर आ, मेरे हाथ स्मेल किए, सिगरेट की स्मेल आ रही थी उसमें। ऐसा मुंह बनाया कि बस आज अभी मेरे को खत्म करने वाले हैं वो। हाँ, वो ऐसा मुंह बनाया उन्होंने कि मेरे को अभी मार डालेंगे, स्मोकिंग करके आया। और कट टू 3-4 महीने बाद में मैं डिवोटी बन गया। अब बोल रहे हैं, अरे तू वो, अब तुझे वो स्मेल नहीं आती हाथों से। मैंने बोला वाह यार, आपको मेरे हाथों से वो स्मेल चाहिए, अब मैं डिवोटी बन रहा हूँ। सो दीज आर द, ये पेरेंट्स के होते हैं ना, डिवोटी मत बनो, कुछ भी करो डिवोटी मत बनो, क्योंकि हमारे हाथ से हमारा लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी चली जाएगी। हमारा बच्चा जो है, हमारा लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, लाइफ सेविंग पॉलिसी है, ये हमारे हाथ चले गई तो हमारा फ्यूचर कैसे निकलेगा? सो दिस इज हाउ दे बिकम। सो मात्र हमको बस खाली इसी पे सेंटी मारते रहते हैं। उन्हें पढ़ा लिखा के बड़ा किया, ये किया, वो किया, वो किया, व्हाट हैव यू डन, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर अस, दिस दैट। पर हम भी, सही बात है यार, छोड़ो यार, भक्ति छोड़ो। हम देव ऋण भूल जाते हैं। ये देव कृष्णा भी गॉड उसमें आते हैं। पितृ ऋण हम थोड़ा बहुत कर लेते हैं, श्राद्ध व्राद्ध, लेकिन उसके बाद में जो ऋण है, ऋषि ऋण, खत्म नहीं कर पाते हम। ऋषि कौन है? ऋषि कौन है? ऋषि ऋण क्या होता है पता है? व्हाट इज ऋषि ऋण? व्हाट इज ऋषि ऋण? गुरु, या गुरु ऋण। मदर फादर गिव्स यू द फर्स्ट बर्थ, लेकिन उनको पता नहीं कैसे, वो तो मजा मस्ती में हो गया बच्चा। उनको मालूम पड़ता है 1 महीने बाद में, उल्टी में या इसमें, अरे आप खुशखबरी आई, आपका बेटा और बेटी होने वाली, जो लोग बताते नहीं है, आप प्रेग्नेंट हो या कुछ भी हो ना, वो अरे वाह चलो, उनको भी पता नहीं है कि कब हुआ क्या हुआ, मस्ती में हो गया। बट जो आपकी सेकंड बर्थ होती है ना, वो मस्ती में नहीं होती। आपकी जो सेकंड बर्थ होती है, गुरु से होती है। वो कब होती है? गुरु आपको पहले नरिश करता है। मदर फादर को नरिश नहीं करते हैं आपको बर्थ के पहले, उनका ऋण है मातृ ऋण। लेकिन जब कंपेयर करोगे गुरु ऋण और मातृ ऋण में, किसका बड़ा ऋण है बताता हूं मैं भी आपको। मदर फादर आपको प्लान नहीं करते कि ऐसा बच्चा ऐसा नहीं, वो तो हो गया आजकल। तो पहले तो होता था, गर्भ संस्कार से होता था, प्लानिंग होती थी पूरी बच्चों के लिए। अब तो कुछ नहीं, अब तो बस गए गोवा और वहां हो गया, गए महाबलेश्वर और वहां हो गया, गए नैनीताल और वहां हो गया। वो होता है आजकल, तो ये होता है ना, नो प्लानिंग। हम गए थे टाइम पास करने और हो गया बच्चा। हनीमून गए थे, बच्चा हो गया, हमको भी नहीं पता कैसे हो गया। और जिनको नहीं चाहिए होता है वो, अरे कैसे होगा, चलो इसको अबॉर्ट करा दो, खत्म करो, पिल्स ले लो, खत्म हो गया, चलो। ये नो, देयर इज नथिंग, देयर इज नो प्लानिंग कि क्या करना है, कैसे होगा, इसको आएगा तो इसको कैसे हम देंगे, क्या, कुछ नहीं, बस ठीक है। बट द सेकेंड बर्थ जो आपको गुरु से होती है, गुरु जब सेकंड बर्थ देता है आपको, उसके पहले आपको नरिश करता है। नरिश कैसे करता है? ज्ञान से, नॉलेज से, टाइम दे रहा है आपको गुरु। मदर फादर आपको पहला नाम देते हैं, गुरु आपको रियल नाम देता है, आपको नरिश करता है और आपको उस लायक बनाता है कि आप दीक्षा या दीक्षा के लायक आप हो जाओ। यू बिकम इनिशिएटेड। इनिशिएट मतलब आपकी स्पिरिचुअल लाइफ स्टार्ट हो जाए। सेकेंड लाइफ इनिशिएट करता है गुरु आपको पहले प्रिपेयर करता है, फिर आपकी सेकेंड लाइफ इनिशिएट करता है। दीक्षा गुरु एंड प्लस शिक्षा गुरु हेल्प करता है उसमें।
तो अब बताओ किसके ऊपर ज्यादा ऋण हुआ आपका? आपको उसने स्पिरिचुअल नेम दिया जो आपको कृष्णा से रियलाइज, क्योंकि आपका क्या है, आप सोल हो, आपका रियल कनेक्शन तो कृष्णा से, तो आपको कृष्णा से कनेक्ट करता है गुरु, आपके रियल फादर से, आपको रियल बर्थ देता है वो, सेकंड बर्थ। फर्स्ट बर्थ तो गलती से हो गया, सेकंड बर्थ पूरा प्रोग्राम करके, पूरा प्लान करके होता है आपका। और फिर आप एक मात्र ऋण के कारण ऋषि ऋण, गुरु ऋण को भूल जाते हो। मम्मी पापा ने बोला आज से चैंटिंग बंद, सब कुछ बंद, हरे कृष्णा प्रभु जी मैं जा रहा हूं, मैं जा रही हूं, खत्म। ये ऋण अगर आपने धोखा नहीं चुकाया ना प्रॉपरली, वे गुरु ने आपको सेकंड बर्थ दिया है, स्पिरिचुअल बर्थ, पोषण किया है आपका, और आपने ये ऋण नहीं चुकाया और आपने दूसरे ऋण के, ये ऋण के आगे सारे ऋण खत्म है, तो दिस इज वैष्णव गुरु अपराध। गुरु अपराध मतलब यदि आपने गुरु को डिच कर दिया, छोड़ दिया घर वालों के लिए या किसी और के लिए, तो आपका भक्ति में से एक लाइफ छोड़ो, 2 लाइफ छोड़ो, 3 लाइफ छोड़ो, मिलियंस ऑफ लाइफ टाइम तक भक्ति नहीं मिलेगी दोबारा, गुरु नहीं मिलेगा दोबारा। दिस इज वैष्णव अपराध, गुरु अपराध। Once you get the name, if you leave, you are doing Vaishnava अपराध, गुरु अपराध। You're finished। कितना भी important circumstance, इसलिए you have to be strong and fight। या तो नाम ना लो, और लो तो उतना दृढ़ बनो, confident, strong कि whatever come, what may come, I will not leave the shelter of my guru, because he then becomes the real father. The guru becomes your real father. The guru becomes your real mother. Material mother father तो कितने टाइम तक रहेंगे? मुझे बताओ, गारंटी दे कोई कर सकता है क्या कि आपके फादर मदर आपको हर लाइफ में वही मिलने वाले हैं? Which father mother can guarantee you that you will get the same father mother every life? Tell me that. Can you guarantee your son or daughter that you will become their parent every life? But the Guru guarantees, and Krishna is the witness in Yagna, that Guru will be your Guru eternally, every life till you are liberated from the material world. The Guru cannot leave the material world. You know this? ये ऋण से कैसे मुक्त हो गए आप? एक गुरु ने आपको एक्सेप्ट किया, और गुरु मटेरियल वर्ल्ड में जब तक रहेगा तब तक आप गोलोक नहीं जाओगे। कैसे मुक्त हो गए ऋण से? गुरु अपना गोलोक जाना बंद कर देता है आप लोग के लिए केवल, कि दे आर माय डिसाइपल टिल दे गो बैक होम, बैक टू, आई कांट गो बैक होम, बैक टू गॉड। ये ऋण से कैसे मुक्त हो गए? बहुत आसान होता है, छोड़ के चले ना भक्ति, क्या है ना सेंटीमेंट, मम्मी पापा मन। सोचो कि हम कितना बड़ा अनर्थ कर देते हैं कि जो गुरु ने हमको सेकंड बर्थ दिया, पूरा पोषण किया, सब कुछ किया, नॉलेज दिया, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो, आंखों से ओम अज्ञान से ज्ञानांजना शलाकया, ये सब किया, उसको हम क्वेश्चन कर देते हैं, उसको हम छोड़ देते हैं, उसको हम चैलेंज कर देते हैं सबके सामने, उसको हम डायरेक्ट आंसर कर देते हैं सबके सामने, मजाक हम, बिकॉज हमने पहला बर्थ जो हुआ ना मजाक मजाक में, वो भी ये समझा भी बहुत मजाक मजाक में हो रहा है, लेकिन कृष्णा नहीं लेता मजाक मजाक में। कृष्णा ये नहीं लेगेगा। एक बार गलती माफ है, दोबारा गलती बिल्कुल माफ नहीं, क्योंकि आप गुरु के पास गए थे, गुरु आपके पास नहीं आया था दीक्षा देने, आपको चाहिए था स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, यू वेंट। सो इफ यू डोंट टेक दैट सीरियस सिंसियर, देन दैट इज गुरु अपराध। होली नेम में जो 10 अपराध है ना, उसमें थर्ड अपराध, नॉट obeying the orders of the spiritual master, and the first अपराध also, दोनों अपराध हो जाते हैं। जब वो 2 अपराध होते हैं, डार्केस्ट रीजन क्या, आप वहीं पे पड़े रहोगे डार्केस्ट रीजन में, for life after life after life after life after life, you will be born only in the hellish planets, and maybe next day of Brahma or next life of Brahma, some other Brahma, you may get a chance to take a human form. मतलब 155 ट्रिलियन ईयर्स के बाद में यू विल गेट अ चांस टू टेक अ ह्यूमन फॉर्म इफ यू डू दिस गुरु अपराध, इफ यू लीव योर गुरु एंड गो।
It is not something, Guru, Rishi Ren is not something cheap. You understand? It is very, very big thing, Guru Ren. आप बाकी सारे ऋण भी नहीं करोगे ना, भूल जाओगे. पुत्र पितृ ऋण गुरु बचा लेगा, मातृ ऋण गुरु बचा लेगा, देव ऋण गुरु बचा लेगा. लेकिन गुरु अपराध गुरु नहीं चुकाओगे, गुरु अपराध वो कौन बचाएगा आप? हाँ, हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम, वैष्णव स्थाने अपराधे नाहि परित्राण. हरि नाम को भी अपराध कर दो तो हरि नाम बचा लेगा आपको. लेकिन अगर वैष्णव अपराध गुरु अपराध कर दिया तो कौन बचाएगा आपको? कौन बचाने आएगा? कोई नहीं. कृष्णा भी नहीं बचाएगा. दुर्वासा मुनि का हमको पता है, दुर्वासा मुनि ने वैष्णव अपराध कर दिया. सुदर्शन चक्र दुर्वासा मुनि के पीछे लग गया. अमरीश महाराज के प्रति दुर्वासा मुनि ने अपराध कर दिया, तो कृष्णा का सुदर्शन चक्र आ गया वहां पे दुर्वासा मुनि को काटने के लिए. दुर्वासा मुनि यहां से वहां भाग रहे हैं, कभी शिव लोग, कभी ब्रह्म लोग, कभी विष्णु लोग, सब जगह भाग रहे हैं. फिर वो विष्णु के पास में, नारायण के पास में गए. नारायण मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, आपका सुदर्शन बचाओ, मुझे काट देगा आपका सुदर्शन चक्र. नारायण बोलते मैं नहीं बचा सकता, मैं नहीं बचा सकता, क्योंकि तुमने मेरे भक्त के प्रति अपराध कर दिया. तो मेरे भक्त और मेरा सुदर्शन मेरा भक्त है, ये मेरे भक्त और मेरे भक्त के बीच मेरा भक्त मेरे दूसरे भक्त को बचा रहा है. मैं क्या कर सकता हूँ बीच में? मैं नहीं कर सकता. मेरा भक्त भी मेरी बात नहीं सुनता जब तुम वैष्णव अपराध करते हो. तो अब या तो तुम कटोगे या वैष्णव के पास जाओ और उनसे माफी मांगो, गुरु से माफी मांगो, तो बच सकते हो तुम. तो कृष्णा भी नहीं बचा सकता हमको वैष्णव अपराध गुरु अपराध में. बाकी तो क्या बचाएगा कोई? इसलिए बोलते हैं हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम, वैष्णव स्थाने अपराधे नाहि परित्राण. कोई है ही नहीं, कोई नहीं, दुनिया में कोई नहीं बचा सकता. गुरु का शेल्टर छोड़ दिया तो ऑब्वियसली वो बोनाफाइड गुरु होना चाहिए. बोनाफाइड गुरु दो टाइप के होते हैं, या तो प्योर डिवोटी हो गुरु तो बोनाफाइड ही है, या तो वो प्योर डिवोटी नहीं हो फिर भी जो प्योर डिवोटी है उनसे लिंक्ड हो, अपने आप को अपनी जगह उनके बीच में डाल दे, उनसे लिंक करे, आपको ट्रांसमिट मीडियम हो. वो ऐसे का छोड़ा आपने तो ना ही परित्राण. कोई ये नहीं है आप. हाँ, वो सेकंड टाइप का गुरु दो टाइप के, एक तो दीक्षा गुरु होता है, वो तो प्योर है ही, कि हैज टू बी नित्य सिद्ध डिवोटी. बट शिक्षा गुरु दो टाइप के होते हैं, एक नित्य बद्धा, एक नित्य सिद्धा. तो नित्य सिद्धा शिक्षा गुरु ऑल्सो द सेम लेवल ऑफ नित्य बद्धा, सॉरी दीक्षा गुरु सेम लेवल. नित्य बद्धा होते हैं वो भी जब तक वो नित्य सिद्धा दीक्षा गुरु को फॉलो कर रहे हैं, ही मे हैव लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, लॉट ऑफ impurities, lot of not perfect, but if he's following the Nitya Siddha Diksha Guru and is connecting you to the Parampara, even you leave that Shiksha Guru, same अपराध होगा, same, nahi paritran, because the chain is there linked with Prabhupada, with Krishna. So if you disobey that or leave that, then nahi paritran. There's no one can save you. So this is how serious spiritual life is. Where will we be cast? In the darkest region of the material world, the hellish planets, or the animal species. सीधा एनिमल स्पीसीज में हम फेंक दिए जाएंगे. जाओ, तुमने गुरु छोड़ा, तुम वर्म बन जाओ, स्टूल में वर्म बन के रहो, पिग बन के रहो. This is the kind of birth we get. We worm in the stool, pig in the stool, when you do Guru Aparadh, Vaishnava Aparadh. Or you just remain in the hellish planet, doing nothing, just, वहां पे आपको, आपके सटल बॉडी को काटा जाता है. जितने वे में आपने अपने गुरु के हार्ट को तोड़ा है ना, उतने इनफाइनाइट टाइम्स आपको वहां पे काटा जाता है, तोड़ा जाता है. This is the punishment, you are given for this, and you will not get bhakti. 155 ट्रिलियन ईयर्स तक ब्रह्मा जी, जब तक ये ब्रह्मा जी 100 ईयर्स खत्म नहीं होगा, नेक्स्ट ब्रह्मा जी नहीं आएंगे. एक्चुअली वो भी है, जितनी दिन उनका लाइफ होता है उतनी उनका नहीं भी होता है. तो बहुत, मतलब आउट ऑफ मैनी lot of time after that, we may get a chance to perform devotional service. This is how rare a devotional service is. जैसा कृष्णा says, बहुनाम जन्मानन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यन्ते वासुदेव सर्वे महात्मा सुदुर्लभ. ये हमको सुदुर्लभ मौका मिला है. सुदुर्लभ, दुर्लभ भी नहीं, सुदुर्लभ, मतलब दुर्लभ से भी दुर्लभ मौका मिला है हमको, कि हमको भगवान की भक्ति करने को मिली है. हमने ये टाइम पे छोड़ दिया ना किसी और चीजों की वजह से, घर की पेरेंट्स, दिस दैट. इससे बड़ा
मिसफॉर्च्यून नहीं होगा हमारा। डिटरमाइंड रहना पड़ेगा अर्जुन की तरह हमको कि हम कुछ भी हो जाए हम बहुत जीत के रहेंगे। इतना डिटर्मिनेशन के सामने जब कृष्णा ने गीता सुनाई तो अर्जुन बिकम सो डिटरमाइंड टू फाइट, defeat, even though the enemy were much bigger. Narayani, Sena was there, but he was determined to fight and get back and become an instrument of Krishna. So similarly, we have to become so determined. क्योंकि हर बहुत से लाइफ में हमने सबको छोड़ा है, सबके लिए भगवान को छोड़ा है। बहुत से रीजन ने, हमने पैसे के लिए भगवान को छोड़ा है, अपने बच्चों के लिए भगवान को छोड़ा है, अपने माँ बाप के लिए भगवान को छोड़ा है, अपने वाइफ के लिए, हस्बैंड के लिए भगवान को छोड़ा है, अपने देश के लिए भगवान को छोड़ा है, सबके लिए भगवान को छोड़ा है। क्या वो अब लास्ट लाइफ में आपके, जैसे ये लाइफ में आपकी मदर फादर बोलते हैं कि भगवान को छोड़ दो, ये सब चैंटिंग वैंटिंग करना बंद करो, ये करो, ये आपको लास्ट टाइम बोला गया होगा सेम। वो वाले माता पिता कहाँ पे हैं जरा ढूंढना, जिसकी वजह से आपने कृष्णा को छोड़ दिया। कृष्णा तो आज भी वही है, कृष्णा तो आज भी वही है, कृष्णा का मंत्र भी वही है, गुरु भी वही है। वो वाले माता पिता कहाँ हैं जिनके लिए आपने कृष्णा को छोड़ा था? ये बताओ, ढूंढ के लाओ कहीं पे। कहाँ है वो? या कहाँ है आपका वो हस्बैंड जिसके लिए आपने कृष्णा को छोड़ दिया था लास्ट लाइफ का? या कहाँ है आपकी वो वाइफ, हाँ, जिसके लिए आपने कृष्णा को छोड़ दिया था? या कहाँ है आपके वो बच्चे जिसके लिए आपने कृष्णा को छोड़ दिया? कृष्णा तो आज भी आपके पास में ही है, लेकिन वो कहाँ है? इसलिए कृष्णा को मत छोड़ो, क्योंकि बाकी सब आपको छोड़ के चले जाएंगे, कोई मिलेगा भी नहीं आपको। आपको आपके पिछली लाइफ का एक भी पर्सन, एक भी इंसान मिला है क्या अभी तक? ये ऑल आर 25-30 ईयर्स, मुझे बताओ आपके लाइफ, लास्ट लाइफ का एक भी इंसान मिला आपको अभी तक? तो हाँ? आपके लास्ट लाइफ का एक भी इंसान आपको मिला है क्या अभी तक, जिसके लिए आपने कृष्णा को छोड़ा था? तो सोचो, आपने उन इंसान के लिए कृष्णा को छोड़ दिया जो इनका आज का आता पता भी नहीं है, जो आज के आपके पास में भी नहीं है आज। तो ये सेम लाइफ, इस लाइफ में आप वही चीज करने क्यों जा रहे हो? नेक्स्ट लाइफ में जो आज आपको रोक रहे हैं वो नहीं होने वाले आपके आसपास, और आपकी स्ट्रगल आपके आसपास ही होगी। आप उतना ही टॉर्चर होगे मटेरियल वर्ल्ड से, उतना ही रोगे मटेरियल वर्ल्ड से, उतने आपके हार्ट ब्रेक्स होंगे मटेरियल वर्ल्ड में, उतने आपके ब्रेकअप्स होंगे मटेरियल वर्ल्ड में। आप तो सफर करोगे, लेकिन आपको जो रोक रहे हैं आज वो आपके साथ में नहीं होंगे। कृष्णा वो टाइम भी आपके साथ में होंगे, आज भी आपके साथ में, कल भी आपके साथ में थे। तो कृष्णा के साथ क्यों छोड़ते हो? क्यों छोड़ते हो कृष्णा का साथ? आज जो रोक रहे हैं आपको, नेक्स्ट लाइफ में आज तो रोक लेंगे आपको, हमारे पास रहोगे करो, लेकिन जो कर्मास गेन कर रहे हो उसको भुगतोगे नेक्स्ट लाइफ में। यदि आपके बॉडी में प्रॉब्लम हो, डायबिटीज हो जाए जल्दी, या आपका हार्ट ब्रेक हो जाए, तो वो ये लाइफ के मम्मी पापा कहाँ होंगे आपको संभालने के लिए? होगा कोई? नेक्स्ट लाइफ में आप किसी और मम्मी पापा को बनाओगे, वो संभालेंगे आपको, उनके लिए आप छोड़ोगे कृष्णा को। फिर उसके बाद फिर सफर तो होना ही आपको मटेरियल वर्ल्ड में। तो नथिंग इज परमानेंट हियर, सब लोग छोड़ के जाएंगे। अरे आपका शरीर भी आपको छोड़ देता है, तो बाकी लोग तो शरीर से जुड़े हुए हैं ना। हाँ, आपके पेरेंट्स, आपका देश, आपका कम्युनिटी, आपका कंट्री, आपका रिलीजन, आपका सब तो बॉडी से जुड़ा हुआ है आपके। आपकी बॉडी आपको छोड़ देगी, आपका साथ छोड़ देगी, तो बाकी लोग तो क्या साथ देंगे आपका? और अब ना, जो खत्म है, जो डेड है मैटर, बॉडी जो मट्टी है, मट्टी के लिए, एक मट्टी और मट्टी से जुड़े हुए रिलेशनशिप के लिए, मट्टी ना क्या होती है? रेत। क्या वैल्यू है रेत की? आपकी बॉडी क्या है? रेत है। जलने के बाद बॉडी क्या बन जाती है? रेत बन जाती है, रेत। राइट? देखा है आपने शमशान में बॉडी क्या बनती है? रेत और हड्डियों का ढांचा, छोटी छोटी हड्डियां और रेत। ये आपकी वैल्यू है। इसके लिए आपने कृष्णा को छोड़ दिया, इस चीज के लिए, और इस चीज के से जो जुड़े हुए लोग थे उनके लिए। इसलिए ईशोपनिषद का थर्ड श्लोक बोलता है कि यू आर द किलर ऑफ द सोल। अगर आप ऐसे करते हो तो आप एक सोल के किलर हो, आप एक आत्महत्या कर रहे हो। ये रियल की आत्महत्या है, अपने आप को मार रहे हो। और 1 2 3 4 5 6 सालों के लिए नहीं, 1 2 3 4 5 6 लाइफ टाइम्स के लिए नहीं, मिलियंस एंड मिलियंस एंड ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस एंड क्वाड्रिलियंस,
lifetimes you will not even know you're going to do that. Just by, if you're not going to fulfill your obligations to your Guru, Devarena. This is Devarena. Rishi Rena. Sorry, Rishi Rena. So the first one was Pitta Rena, the second was Matra Rena, the third was Deva Rena, the fourth was Rishi Rena, Guru Rena, and the fifth is Bhuta Rena. भूत मतलब भूत नहीं, Bhuta Rena मतलब जो भी चीजें हैं आप यूज करते हो. Bhuta Rena जैसे कि water, air, fire, house utensils, grains, object, cows, milk, जो भी आप यूज करते हो जो आपका नहीं है इस मटेरियल वर्ल्ड में, उसका ऋण लगता है कृष्णा, वो भी ऋण लगता है. वो बोलते हैं भूत ऋण, ऑब्जेक्ट्स का ऋण. भूत मतलब ऑब्जेक्ट्स, मटेरियल वर्ल्ड के ऑब्जेक्ट्स अब यूज करते हो. चमचमाती गाड़ी यूज करोगे आप, राइट? ओ मैंने तो पैसे दे दिए मर्सिडीज वाले को, हो गया. मर्सिडीज वालों ने क्या घर में बनाई थी, जो मेटल जो होता है उसको उन्होंने माइन करके लेके आए थे, माइनिंग जगह से लिया था. माइनिंग वालों ने अपने घर में बनाया था, उन्होंने धरती माँ से लिया था. धरती माँ को किसने दिया था? कृष्णा ने दिया था. तो आप जो भी ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हो उसका ऋण आप यहां तो दे देते हो टैक्स में, वहां कैसे दोगे आप? वहां किसको दोगे? तो इसीलिए पूरा धर्म अर्थ काम मोक्ष है कि हम धर्म करें, धर्म से के अंडर अर्थ करें तो हमारे ऋण भी चुकते रहेंगे. धर्म अर्थ काम थोड़ा एंजॉयमेंट करें और फिर मोक्ष के पास जाएं. ये पूरा वैदिक क्या बोलते हैं मॉडल था, कर्म जिसको बोलते हैं कर्म कांडा मॉडल. तो हमको अगर हम कर्म कांडा ही फॉलो कर रहे हैं, भक्ति पूरी नहीं कर रहे हैं, तो भी हमको ये सब पांचों ऋण चुकाने पड़ेंगे. केवल मात्र ऋण चुका के हमारा कुछ नहीं होने वाला, हम फिर भी हेल में ही जाएंगे क्योंकि ये चार ऋण नहीं चुक पाएंगे. और गुरु ऋण, देव क्या ऋषि ऋण तो बहुत बड़ा है, वो नहीं चुकाएंगे तो कहां जाएंगे. और ऋषि भी कितने ये होते हैं ना, आप एक सेवा करो अपना खत्म कर मान लेते कि हो गया बहुत. लेकिन यदि आप विश्वासघात करते हो ना, छोड़ के या किसी और के साथ के लिए आप गुरु को छोड़ दो, तो फिर गुरु तो माफ कर, गुरु कभी है ना एंगल लेके नहीं बैठता है. लेकिन जो गुरु की रज होती है ना, रज, द डस्ट ऑफ द फीट ऑफ द गुरु विल नॉट लीव यू. एंड द डस्ट ऑफ द फीट ऑफ गुरु इज हिज डिवोटीज, जो कृष्णा के डिवोटीज हैं, वो आपको कभी नहीं छोड़ेंगे. वो आप कितना ही कर लो उसके बाद में आर्टिफिशियली आप सोचो मैं घर में चैंटिंग कर लूं, सब मैकेनिकल हो जाएगा. वो कौन सा श्लोका है? इफ यू नॉट प्रॉपर्ली इनिशिएटेड यू विल गो अगेन इनटू द हेलिश प्लैनेट्स. तो आपका इनिशिएशन खत्म हो गया, अपने गुरु को छोड़ दिया, आपका दीक्षा खत्म हो गया. आप तो लाइफ भर आप चैंटिंग करते रहो 108 राउंड्स भी, कोई कनेक्ट नहीं है. यू विल स्टिल गो टू द हेलिश प्लैनेट्स. ये है गुरु ने. सो दीज आर ऑल कर्म कांडा. सब भागवत में एक श्लोक आता है, एक जो इंसान है वो अगर वैष्णव बन जाए, देन उसके पितृ ऋण, उसके मातृ ऋण, उसके देव ऋण, उसके ऋषि ऋण और उसके भूत ऋण सब माफ कर दिए जाते हैं. नॉट ऑब्लाइज्ड टू एनीवन. तो या तो आप डिवोटी नहीं हो तो कर्म कांडा ही फॉलो करो, तो आपको ये पांचों ऋण भरने पड़ेंगे, करना ही पड़ेगा. एक ऋण से आप नहीं मुक्त हो सकते, खाली मात्र ऋण कर लो. या तो आप अगर भक्ति में आ गए तो फिर ये चारों ऋण का कोई मतलब ही नहीं है. देन यू आर मुक्त, नो ऑब्लिगेशन. देन आपका खाली ऑब्लिगेशन आपके गुरु पे तो रहता है, गुरु एंड कृष्णा, नथिंग एल्स. तो एक डिवोटी का भागवत में एनीवन कैन पुट दैट श्लोका है. किसी का श्लोका हुआ? मैंने डाला था श्लोका. So can someone put the Srimad Bhagavatam shloka where you know no obligation? Subhangi, I think you have saved that shloka. You can put it. Yeah, bhoot, 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 but not the ghost bhoot. This is the object. ऑब्जेक्ट को ही भूत बोलते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं उसको भूत बोलते हैं संस्कृत में. BHOOT. भैया सो यहाँ पे क्या लिखा है? इसमें क्या लिखा है श्लोक में? श्रीमद् भागवतम 11.5.41
Anyone who has completely surrendered to Krishna, Mukunda, giving up all the other duties, is no longer a debtor. You are not a debtor then. आप अगर भक्त बन गए तो आप किसी का आपको डेट नहीं है. आप भक्त नहीं बने तो आपको सबका डेट चुकाना पड़ेगा. खाली एक का चुका के आप मुक्त नहीं हो सकते. चुकाना पड़ेगा सब पांचों का आपको. यदि आप भक्त बन गए तो यू आर नो लॉन्गर अ डेटर टू एनीथिंग. देन आप कृष्णा की भक्ति करो, गुरु की भक्ति करो, आप गो बैक टू गॉड. कोई प्रॉब्लम नहीं है. सवै पुंसा परो धर्मा यतो भक्ति अदोक्षजे. सवै पुंसा, ऑल लिविंग एंटिटीज परो धर्मा, नित्य धर्मा, द रियल धर्मा, द ओरिजिनल धर्मा, परो धर्मा, टॉपमोस्ट धर्मा ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज. सवै पुंसा परो धर्मा यतो भक्ति अदोक्षजे. शास्त्र बोल रहा है यतो भक्ति, भक्ति है आपका परो धर्म, नित्य धर्म. बाकी सब आपके नैमित्तिक धर्म है. सबको छोड़ सकते हो आप यदि आप भगवान की भक्ति कर रहे हो तो. आप किसी को आप ऑब्लाइज नहीं हो, और वही आपको बचाएगा डार्केस्ट रीजन में जाने से. देन यू विल नॉट बी अ किलर ऑफ द सोल, देन यू विल बी द लिबरेटर ऑफ द सोल, और नॉट ओनली लिबरेटर ऑफ योर सोल. भागवत बोलते हैं 21 जनरेशन आपका लिबरेशन मिलेगा यदि आप एक डिवोटी बन गया घर में. तो कौन सा बड़ा फायदा कर रहे हो आप घर वालों को डिवोटी बन के? खाली पैसे कमा के देके, पैसे कमा के देके खाली आपको ये 20-25 साल तक आप उनको पोषण कर पाओगे. यदि आप डिवोटी बन गए तो आप उनको ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से मुक्त कर पाओगे और उनको भी गोलोक भेज लेके जा पाओगे. तो कौन सा बड़ा काम है? दोनों में से काम कौन सा वाला बड़ा काम है बताओ? 30-40 साल खाली उनके नेसेसिटी को सप्लाई कर देना, या परमानेंट सोल्यूशन देना उनको ऐसा कि उनको वापस बर्थ लेना ना पड़े? कौन सा बड़ा काम? डिवोटी बनना, ये एंटेंगल रहना? कैसे आप सर्व करोगे पेरेंट्स को बेटर? ठीक है, उनका काम करते करते कि भगवान की भक्ति करो, और उनका ही नहीं 21 जनरेशन आपकी आने वाली और आ चुकी 21 जनरेशन आपकी सबको लिबरेशन मिलेगा. प्रहलाद महाराज पूछते हैं नरसिंहदेव से, नरसिंहदेव बोलते हैं भगवान प्रहलाद महाराज को क्या चाहिए प्रहलाद? तो बोलते हैं, प्रहलाद झुक के बोलता है कि भगवान आपने मेरे पिताजी को मार दिया, बहुत अच्छा किया, लेकिन बस क्योंकि मैं एक भक्त हूँ, करुणा है मेरे दिल में, तो आप मेरे पिताजी को मुक्ति दे दो. तो नरसिंहदेव स्माइल करके बोलते हैं, हे प्रहलाद ये देख, खाली तेरे पिता नहीं, तेरे 21 जनरेशन पूर्वज सब वैकुंठ जा रहे हैं विमान में बैठ के, मेरे विमान में बैठ के सब वैकुंठ जा रहे हैं. तो भक्त की महिमा ऐसी है कि वो खुद तो लिबरेट होगा, अपने आजू बाजू सबको लिबरेट करेगा और अपने 21 पुष्टों को लिबरेट कर देगा. पूरा पितृलोक खाली कर सकता है एक भक्त. पितृलोक में सब हमारे पितृ बैठे होते हैं, तो एक भक्त में इतनी पावर है कि खाली चैंटिंग करे यहाँ पे और वहां पितृलोक खाली होते रहे. इसलिए माया हमको चैंटिंग करने देती भी नहीं, वहां पितृलोक भी खाली होते हैं ना. तो खाली करे क्या है ना, माया वांट्स एवरीथिंग फुल, तो पितृलोक भी फुल होना चाहिए, सब फुल होना चाहिए इधर. हमको माया डालती है बार बार. बट अ डिवोटी कैन लिबरेट himself, his dependents and 21 generation. So this is the biggest service you can do for your parents. You are connecting them to Krishna even without knowing them. They don't know but you're connecting. They didn't ask but you're still connecting. उनको पता भी नहीं है क्या होने वाला है उस में, फिर भी उनको गोलोक मिल जाता है. Unknowingly they go back to God. Knowingly तो क्या है, unknowingly. सोचो इतनी महिमा है केवल एक भक्त बनने के लिए. और हम सोचते हैं कि हम थोड़ा पैसा कमा के उनको हेल्प कर देंगे, थोड़ा चैंटिंग को छोड़ के उनको हेल्प कर देंगे, थोड़ा सेक्रीफाइस करके हेल्प कर देंगे. क्या इतना हेल्प कर लोगे? 20 साल 30 साल 40 साल हेल्प कर दोगे उनको, उसके बाद तो उनके कर्मों के अनुसार दे विल गो टू हेल, क्योंकि उन्होंने भी 5 ऋण नहीं चुकाए हैं, और एक्चुअली आपको अपना ऋण चुकाने से मना भी किया है, तो उनके ऊपर तो वो पाप भी लगेगा. आपके ऊपर भी गुरु अपराध का लगेगा, उनके ऊपर भी गुरु अपराध का लगेगा, और जो उनसे बात करे सब पे लगेगा, जो आपसे बात करें उससे लगेगा. तो इसलिए यू नो आप डिटेल में if you go really go in detail, the person who leave the shelter of such a guru after getting the name and getting linked to the parampara, that person तो भक्ति खत्म.
ट्रिलियंस ऑफ ईयर के लिए, लेकिन जो उनसे कनेक्शन रखता है फ्रेंड्स होके ये सब करके, उनकी भी भक्ति खत्म होते टाइम के लिए, उनकी भी भक्ति खत्म। तो समझो जैसे कि मैंने छोड़ दिया गुरु को, ठीक है, मैं इस्कॉन इंक में आया, सब डिवोटीज थे, एंजॉय डिवोटीज का संगा किया 2-3 महीने, नाम वाम मिला, उसके बाद में मेरे पेरेंट्स के दबाव में मैंने डिवोटीज का संग छोड़ दिया और मैं चले गया छोड़ के। तो मैंने तो अपराध कर दिया, वैष्णव अपराध, गुरु अपराध, मेरे घर वालों को भी उसका फल मिलेगा, और उसके बाद में यदि उस संग में जो को मिलेगा, ऑल विल बी पनिश्ड, ऑल विल बी पनिश्ड। सब जो भी रखेगा सेंटिमेंटली, अरे क्या है ना, हम थोड़ा हेल्प कर दें, थोड़ा ये कर दें, सबका खत्म। पता नहीं चलेगा आप लोग को, आप लोग लगेगा चैंटिंग कर रहे हो, भक्ति खत्म वहां पे। इट इज वेरी सीरियस थिंग, वैष्णव अपराध, गुरु अपराध, बहुत। इसके लिए इसको मैड एलिफेंट ऑफेंस बोलते हैं। मैड एलिफेंट, पागल वाला हाथी जब घुसता है सब कुछ तबाह कर देता है, कुछ नहीं बचता। एक जब पागल मद मस्त हाथी जब किसी गार्डन में घुसता है ना, क्या होती है उस गार्डन की हालत, पूरा गार्डन तबाह। उसी प्रकार एक मैड एलिफेंट ऑफेंस होता है गुरु अपराध। वो अगर आपके अंदर आ गया ना, तो आप क्या, आपके आजू बाजू जो आपके टच में आएगा सब बर्बाद। आप ही नहीं, आपके आजू बाजू जो भी आपके टच में रहेगा सब बर्बाद। इसलिए वी हैव टू वेरी केयरफुल, इसीलिए भक्तिविनोद ठाकुर लेफ्ट इज गुरु, अपने गुरु को रिजेक्ट कर दिया उन्होंने, क्योंकि अगर मैं अपने गुरु के संग में रहूंगा मैं बर्बाद हो जाऊंगा। इसलिए क्या किया उन्हें, उनके गुरु ने बोला, विपिन बिहारी ने, कि महाप्रभु वहां पैदा नहीं हुए थे, यहां पैदा हुए थे। विपिन बिहारी ने अपने गुरु का शेल्टर छोड़ के एक नई थ्योरी बनाई कि चेतन महाप्रभु मायापुर पैदा नहीं हुए थे, वो ये गांव में पैदा हुए थे। तो भक्तिविनोद ठाकुर ने अपने गुरु को चैलेंज कर दिया कि आपने कैसे किया, और गुरु को रिजेक्ट कर दिया ओपनली। मैं अपने गुरु को रिजेक्ट कर रहा हूं, क्योंकि मैं अपने गुरु के साथ में रहूंगा तो मैं भी इस अपराध का भुगता बनूंगा और मेरी भक्ति खत्म हो जाएगी लाइफ के लिए। तो भक्तिविनोद ठाकुर ने अपने गुरु दीक्षा, गुरु तक को छोड़ दिया, वैष्णव अपराध से बचने के लिए, क्योंकि दीक्षा गुरु ने गलत जगह बता दी महाप्रभु के पैदा होने की। सो ये है जो अपराध करे उसको, उससे दूर रहना। तो जो भक्तिविनोद ठाकुर जैसे नित्य सिद्ध डिवोटी ने सेट एग्जाम्पल किया हमारे लिए, कि यदि आपके किसी ने अपराध कर दिया अपने गुरु के प्रति, तो यदि आप उसके संग में रहोगे तो आप खत्म, तो आप उसको रिजेक्ट भी कर सकते हो ऐसे इंसान को लाइफ लॉन्ग के लिए। दिस इज द हाइट ऑफ गुरु अपराध। अरे गुरु अपराध खाली, वैष्णव अपराध छोटा सा अपराध, खाली एक जीव गोस्वामी ने स्माइल कर दिया था और सामने वाले ने अपराध मान लिया, तो जीव गोस्वामी की लीलाएं खत्म हो गई। देखना, वो लीलाएं देख नहीं पाए, उनसे उनके स्मरण से भगवान की लीलाएं खत्म हो गई, अननोइंगली खाली अपराध करने के कारण। सो जीव गोस्वामी जो राधा रानी के मंजरी है, वो लीला देख रहे थे राधा कृष्णा की वृंदावन में, और वो लीला में राधा रानी फ्लावर प्लक कर रही थी और उनका हाथ नहीं पहुंच रहा था। तो कृष्णा गए और उनको लिफ्ट किया। अब राधा रानी को लिफ्ट किया तो राधा रानी ने अपना हाथ लिया, ब्रांच के ऊपर रखा, एक हाथ से ब्रांच पकड़ा है, दूसरे हाथ से फ्लावर प्लक किया, तो कृष्णा ने उनको छोड़ दिया और वो सीधा ऊपर गई, ब्रांच के वेट के कारण, पावर के कारण सीधा हवा में उड़ी। तो वो हवा में उड़ी, जीव गोस्वामी ने देख रहे हैं, अपने स्मरण में लीला देख रहे हैं, और ये लीला देख रहे हैं, वो भी हंस दिए, हा राजा ने उड़ी हवा में। सामने से एक वैष्णव जा रहा था, उस वैष्णव थोड़ा है ना पोलियो था उसको, तो बड़ा कुडंट वॉक प्रॉपर्ली। तो उस वैष्णव ने समझा कि जीव गोस्वामी उसको देख के हंस रहे हैं, जीव गोस्वामी लीला को देख के हंस रहे थे, कृष्ण लीला को। उसने सोचा कि जीव गोस्वामी उसको देख के हंस रहे हैं, उसने अपराध मान लिया, जीव गोस्वामी की लीला खत्म हो गई। देखना, जीव गोस्वामी लीला नहीं देख पाए उसके बाद में, कोई भी राजा वो देख रहे थे क्या हुआ, भगवान की लीला कहां गई, रो रहे कर रहे, भगवान की लीला खत्म हो गई, कैसे समझ नहीं पा रहे। कौन जो मंजरी है गोलोक में राधा रानी की, उनके साथ में ये हो गया, एक वैष्णव गुरु अपराध से। हम और आप क्या हैं? फिर वो गए रूप गोस्वामी, शरण गोस्वामी के पास में कि ये हो गया,
रूप गोस्वामी ने बोला कि यू हैव डन सम ऑफेंस, किसी वैष्णव को अपराध किया है आपने। बोला किसको किया? मैंने तो किसी को नहीं, मैं तो लीला देख रहा था और अचानक ये हो गया। नहीं, अब हुआ तो है, अब कैसे हुआ क्या हुआ ये आप मालूम करो। जैन जीव गोस्वामी हर एक वृंदावन में जो भी वैष्णव रहते थे सबके घर पे जा जाके दंडवत मार के बेग कर रहे हैं, मुझे माफ कर दो, मुझे रो रो के मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। सब देख रहे हैं क्या हो गया जीव गोस्वामी को आज। ही इज गोइंग टू ईच एंड एवरी हाउस begging forgiveness, please forgive me, please forgive me. Then he reached this Brahmana's house, this Vaishnava house. The Vaishnava opened and he paid obeisances. Oh Vaishnav, मुझे माफ कर दो, मेरे से ये गलती हो गई, माफ। Then the Vaishnava realized, हाँ अरे आप तो वही हो जो मेरे को देख के हंस रहे थे, मैं आपको कब हंसा, अब वहां बैठे थे। Then जीव गोस्वामी explained to him कि मैं लीला देख रहा था भगवान की और मैं उस लीला के कारण हंसा मैं, और आपने इसको समझ लिया कि मैं आप पे हंसा, मैं माफी मांगता हूं आपसे। जीव गोस्वामी ने उस वैष्णव को 108 दंडवत मारे वहां पे, 108 दंडवत रो रो के 108 दंडवत मारे, उसकी 108 परिक्रमा की, दंडवत, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। जब वो वैष्णव को लगा कि अरे बाप रे ऐसी बड़ी गलती हो गई उसने, तो उसने फिर जीव गोस्वामी को 108 दंडवत मारे और उनका ये किया और दोनों ने गले मिले और फिर जीव गोस्वामी की वापस लीला चालू हो गई। तो दिस इज अननोइंगली नोइंगली व्हाटएवर you may do, but Vaishnav aparad, Guru aparad, Rishi Rana is very very devastating if you take it lightly. He will be हम बोलते हैं आओ लेक्चर में आओ, क्यों नहीं आ पाते हैं? क्योंकि ये लोग वही लोग हैं जो लेक्चर में आपको देखेगा कंसिडर नहीं आ पाएंगे 10-12 मिनट। क्यों? क्योंकि गुरु अपराध पहला हो रहा है, बोल रहा है नहीं हो रहा है, फिर वो अचानक क्या होगा, भगवान उनको खत्म कर देगा, भक्ति उनकी इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, माया कुछ कर देगी, घर वाले कुछ कर देंगे, भाग जाएंगे यहाँ से। तो ये सब उसी का लेवल है, different symptoms of the same aparad, guru aparad ka symptoms hai. Understand? So one should be very careful when you promise to be a coordinator with the name also, then you are obliged to the ऋण, जो आपको नाम, जो आपको शिक्षा मिल रही है, नॉलेज, एक आप प्राइवेट स्कूल में कॉलेज में जाते हो, आप 3-3 लाख रुपए दे देते हो फीस, 1.5 लाख रुपए साल की फीस दे देते हो, 10 साल पढ़ाई की, आप 10-15 लाख खत्म। गुरु तो आपको फ्री में दे रहा है, एजुकेशन फ्री में, वो आपसे कुछ नहीं मांगता है कि मुझे सैलरी दो या मुझे सैलरी क्या, मुझे डोनेशन दो या मुझे अपना दक्षिणा दो, इसके लिए नहीं। लेकिन कृष्णा नोटिस कर रहा है, ये गुरु ने इतने बार सिखाया है, तो ये सब इसके ऊपर इतना ऋण हो रहा है, ऋण। तो इसलिए यदि हम अपना जिंदगी भर गुरु की सेवा करेंगे ना, तो भी ऋण नहीं उतरने वाला, वो ऋण से मुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि गुरु इतने नॉलेज देता है, दिव्य ज्ञान देता है प्रकचितो, हमको भगवान माया से बचा के रखता है, हमें ज्ञान देता है, हमको नरिश करता है, हमको स्ट्रॉन्ग बनाता है भक्ति में, स्पिरिचुअली, एंड हम उसी के साथ में ऐसा कर देते हैं। सो दिस इज वेरी वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल व्हेन वी आर इन डिवोशनल सर्विस। इज नॉट सम टीचर, स्कूल का टीचर है जो पढ़ा रहा है और हमने पढ़ लिया, नो। स्कूल का टीचर अध्यापक होता है, वो ऋषि नहीं होता। देयर इज अ डिफरेंट, लोग बोलते हैं ना सेंटिमेंटली, अरे गुरु पूर्णिमा पे अपने गुरु को स्कूल टीचर को जाके नमन करो। नहीं, वो गुरु नहीं है, गुरु पूर्णिमा उसके लिए नहीं है, स्कूल के टीचर के लिए, वो अध्यापक है। गुरु वो होता है जो आपको स्पिरिचुअली आपका आंख खोले, वही गुरु काला कहलाया गया है शास्त्र में। गुरु पूर्णिमा उनके लिए होती है, हम अपने टीचर्स को जाके वो हैप्पी टीचर्स डे बोल देते हैं गुरु पूर्णिमा पे। वो अध्यापक है, अध्यापक का दिन नहीं है वो गुरु पूर्णिमा, अध्यापक पूर्णिमा नहीं है वो। अध्यापक अलग है, स्कूल का जो मटेरियल नॉलेज देता है, गुरु अलग है, गुरु आपको स्पिरिचुअल नॉलेज देता है। वो मज्ञान ज्ञानांजन शलाकया, हमारे बंद आंख को खोलता है वो, विद द टॉर्च लाइट ऑफ नॉलेज, दैट इज अ रियल गुरु, स्पिरिचुअल नॉलेज, नॉट एन अध्यापक। सबके लिए अलग अलग नाम दे रखे हैं। वेद, डॉक्टर वेद है, टीचर अध्यापक है, गुरु ऋषि है, आचार्य है, ये गुरु है, इनका ये नाम है शास्त्र में। तो हमें समझना पड़ेगा कि हमारा रियल ऋण किसके प्रति है। वो जो हमारे स्कूल का टीचर है उसको तो हम हमारे कारण वो सैलरी ले रहा है, उसका हमारे को ऋण नहीं है। ज्ञान उसने दिया हमको, उसको उसकी सैलरी मिल रही है, नो ऋण। लेकिन ये जो ऋण है ना, गुरु ऋण जो स्पिरिचुअल नॉलेज दे रहे हैं विदाउट गिविंग हिम एनीथिंग, ये इतना पाइलअप है हम पे कि उसके इतना हैवी बोझ है कि हम कभी हम चुका भी नहीं सकते उसका। Why are we Prabhupada so much mad to do something for Prabhupada? हमको पागल है,
बिकॉज हमें पता है हम पे कितना ऋण है प्रभुपाद का। ये लाइफ में क्या आप बिलियंस ऑफ लाइफ टाइम में नहीं चुका सकते हो ऋण को। हमारे शरीर का हमें ना बोटी बोटी पे निकाल देना प्रभुपाद के लिए हम नहीं दे सकते, कुछ नहीं चुका सकते। खून खून गैलन्स ऑफ खून भी निकाल देना प्रभुपाद हम कुछ नहीं कर सकते। इतना प्रभुपाद ने हमको किया। हम प्रभुपाद ने हमको कृष्णा दिए, प्रभुपाद ने हमको वे दिया है जो हम बैक टू गॉड जा सके। कहां से छोड़ेंगे उनका ऋण हमें? इसलिए डे नाइट 24 आवर्स हम कहां से मिलता है इंस्पिरेशन? इसी से मिलता है कि जो प्रभुपाद ने एहसान, जो स्पिरिचुअली एहसान किया है ना हम पे, what he has done for us, how can we repay that? Billions of lifetime we take, we can't repay Prabhupada's rent, what Prabhupada has done for us. हमारी छाती काट के भी प्रभुपाद कर ही नहीं चुका सकते, और हम इतनी आसानी छोड़ के चले जाते हैं उनको। What are we? Rascals, demons, opportunists. जब तक थोड़ा डिस्ट्रेस रहा हमने लिया गेन, बस फिर छोड़ के चलो निकलो। कोई और ने हमको बुला लिया, हमको अट्रैक्ट कर लिया, हमको पुश कर लिया, हमको फोर्स कर लिया, भागो यहां से। What are we? मजाक समझ रखा है। Yes. Hare Krishna. So don't be the killer of your soul. Be the liberator of the soul. जीवेर स्वरूपे कृष्ण नित्यदास. Your Krishna has given you so much. Prabhupada has given us so much. Don't leave his dhoti. Don't leave his shelter. ISKCON is Prabhupada. ISKCON is Prabhupada's shelter. He is the real ISKCON. का मौका मिला। वो सब कृष्णा के नित्य डिवोटीज हैं जो गोलोक से, जो वैकुंठ में जो गोलोक है वहां से आए हुए हैं कृष्ण की सेवा करने के लिए। नित्य डिवोटीज हैं वो।